Right, so welcome everyone. I welcome all of you to this session on topography. This session is based for the students of ICSE class 10, and we are going to discuss the complete topography concepts in these videos. Videos will be bifurcated in different sessions. Let's see how many sessions we go through. I expect that the entire chapter should be over by 4th or 5th session, but let us see. सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको स्क्रीन पर ठीक मेरे ऊपर दो फ़ोन नंबर्स दिख रहे होंगे. फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द एंटायर टोपोग्राफी अकॉर्डिंग टू आवर नोट्स. The notes have been prepared according to the 2022 syllabus. ठीक है, if I'll show you the syllabus, let me show you. This is the 2022 exam syllabus, and this syllabus has been notified at least as of now by the council. अभी अप्रैल मंथ में आई एम रिकॉर्डिंग दिस, अप्रैल मंथ तक कोई नोटिफिकेशन आपके काउंसिल से नहीं आया है. सो फार नो अदर नोटिफिकेशन हैज़ कम फ्रॉम द काउंसिल, सो वी आर डिस्कसिंग दिस सिलेबस विच इज़ एप्लीकेबल सो फार. अब आगे जाकर के अगर रिड्यूस हो जाता है सिलेबस या कुछ और नोटिस आता है तो वी विल कंप्लीट इट अकॉर्डिंगली, बट एज ऑफ नाउ वी आर डिस्कसिंग द फुल सिलेबस. ठीक है, बिकॉज राइट नाउ इन द मंथ ऑफ अप्रैल the council has said to follow the full syllabus, so we are following the full syllabus. If at all the council comes out with a different notification, then we'll take care of that. ठीक है, so the notes that we are going to follow, if you want you can ask for the notes. I think on the screen right above my head you can see the phone numbers. ठीक है, so for full notes or even for any class inquiries you can contact on the number given above. The number given below is my number. That number will only be used for doubt solutions. So if you have any queries you can reach me out and I'll try to solve that doubt. ठीक है, so दो फ़ोन नंबर्स है, देखो ध्यान से, जहाँ जो लिखा है वहीं पे वो पूछना. ठीक है, डोंट आस्क मी फॉर द नोट्स एंड डोंट आस्क देम. जो ऊपर वाला नंबर है वो ऑफिस का नंबर है, डोंट आस्क देम फॉर एनी डाउट सॉल्यूशन. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. ठीक है, so we'll divide it into different parts. In the first part I'm going to tell you about grids. ठीक है, we are going to discuss grids in the first part. I mean in this video we are going to discuss about grids. After grids we'll see importance of colors. ठीक है, so we are going to discuss about colors in this video, and then I'll take you to river patterns या फिर drainage pattern you can call it, river patterns, and I'll take some other topic, some small topic for this first video. We'll see. ठीक है, we'll see. At least as of now we are going to discuss these topics. I'll take direction. ठीक है, तो 4 topics we are going to complete in this video. Okay, so let us discuss small topics first, and then we'll gradually go on to some big topics like the topics of height, the topic of scale, the topic of distance calculation, the topic of area calculation, settlement patterns, signs and symbols. तो काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए, बट इन द फर्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लुक एट द फर्स्ट 4 टॉपिक्स, एंड दैट इज ग्रिड रेफरेंसेस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रिड रेफरेंसेस, विल डिस्कस देम. ठीक है, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कलर्स, नेक्स्ट कम्स रिवर पैटर्न्स, एंड द लास्ट वन विल बी डायरेक्शन. देयर आर टोटल 8 डायरेक्शंस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है, तो चलते हैं. आई विल ऑल्सो शो यू द टोपो शीट दैट यू विल बी गेटिंग इन द एग्जाम, एंड initially we'll study from the slides, and then I'll also take you to the topo sheet, the kind of topo sheet that you'll be getting in the exam, so you will be very well versed with it. ठीक है, तो हमें पहले समझना है कॉन्सेप्ट को, फिर हम लोग एक्चुअल टोपो शीट में भी जाके देखेंगे कि ऐसा कुछ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो वहाँ होता है कि नहीं वैसा. ठीक है, सो डायरेक्टली लेट अस कम टू Topo sheet class 10 ICSE. Let us come to 4 figure and 6 figure grid references. ठीक है, तो क्या होता है grid references and how do we find 4 figure 6 figure, what is it used for? अभी आपको सारे सवाल का जवाब इस पर्टिकुलर क्लिप में मिल जाएगा. सबसे पहले समझने का कोशिश करो, ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं ईस्टिंग्स. क्या बोलते हैं, साथ साथ में बोलना, तो कोई शर्म का बात नहीं, आप घर पे बोल रहे हो, यू स्टडिंग ओनली. ठीक है, vertical lines, what do we call vertical lines? We call them eastings. क्या बोलते हैं इनको, eastings. यहाँ पे I am writing it
EASTINGS, ठीक है, ईस्टिंग्स बोलते हैं इनको, वर्टिकल वाले लाइंस को ईस्टिंग बोलते हैं, और हर ईस्टिंग का अपना एक नंबर होता है, वो नंबर ऊपर में भी दिखाया जा सकता है, ठीक है, that number can be shown above also, that number can be shown below also, and that number can be shown in between also. I'm not writing in between वरना बहुत हौच पौच हो जाएगा, so I'm just writing at the top and at the bottom, but that number can be written in between also, ठीक है, कुछ मैप्स आप देखेंगे वहाँ नंबर बीच में भी लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर ईस्टिंग्स का नंबर क्या है 98, तो ये वर्टिकल लाइंस को हम लोग ईस्टिंग्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नंबर्स जो है ना ईस्ट के तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि देखो नेक्स्ट वाला लाइन जो है ना वो 99 हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट वाला लाइन 99 हो गया, सो 98, 99, सो नंबर्स आर, एज द नंबर्स आर मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट द नंबर्स आर इंक्रीजिंग, सो दैट इज व्हाई दीज वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड ईस्टिंग्स, ठीक है, तो ईस्टिंग्स बोलते हैं। आगे जाएगा तो फिर 0 हो जाएगा एंड देन 0 1 हो जाएगा, 100 नहीं लिखेंगे हम लोग, कभी भी ट्रिपल डिजिट्स में आंसर नहीं लिखते हैं, ग्रिड का नंबर कभी भी इट विल नेवर बी इन ट्रिपल डिजिट्स, ग्रिड के नंबर्स हमेशा डबल डिजिट में रहते हैं, ठीक है, तो अगर 1 है तो विल नॉट राइट 1, विल राइट 0 1, अगर 100 है विल नॉट राइट 100, विल राइट 00, तो 98, 99, 100 के जगह 00, देन 1, 01, देन 02, 03, 04, अगेन 99 तक जाएगा, फिर 0, 00, देन अगेन 01, तो दिस वे इट विल कंटिन्यू, सो नंबर विल कीप ऑन मूविंग। आई एम जस्ट शोइंग यू few numbers right now। तो वर्टिकल लाइंस को ईस्टिंग्स बोलते हैं। व्हाई डू वी कॉल इट ईस्टिंग्स? बिकॉज द नंबर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज दे मूव टुवर्ड्स द ईस्ट। फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग बोलते हैं नॉर्दिंग्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को वी कॉल नॉर्दिंग्स, ठीक है, इनको नॉर्दिंग्स बोलते हैं। अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, नॉर्दिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि नॉर्थ के तरफ नंबर बढ़ते हैं। एक और चीज देखना, वी आर नॉट राइटिंग 8 ओनली, वी आर राइटिंग 08, दीज नंबर्स आई हैव टेकन रैंडमली, ठीक है, आई कुड हैव टेकन एनी नंबर, आई हैव टेकन 08, तो 08 क्यों ले रहे हैं, रैंडमली ले रहे हैं। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 9, सो एज वी मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ मतलब टॉप, अप, अपवर्ड्स, एज वी मूव अपवर्ड्स numbers will keep on increasing, तो देखो 0 9 आ जाएगा, इसके बाद then 10 आ जाएगा, then 11 12 and so on and so forth, ठीक है, तो ऐसा चलता जाएगा अपना। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या सीखा, तो right now till now what we have studied, till now we have studied that the vertical lines are called eastings, and they are called eastings because they are numbered as and when they move towards the east. Horizontal lines are called northings, they are called northings because they move towards the north, ठीक है। अच्छा, ये ईस्टिंग्स एंड नॉर्थिंग्स के होने के वजह से, बिकॉज ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, वी कैन सी सर्टेन बॉक्सेस। आप देखो कितने सारे बॉक्स फॉर्म हो गए है ना, जैसे ये एक बॉक्स बन गया, ये पूरा एक स्क्वायर बन गया। What are these square known as? These squares are known as grid square. इनको हम लोग ग्रिड बोलते हैं या फिर ग्रिड स्क्वायर बोल सकते हैं। सो बेसिकली जो हम लोग ग्रिड रेफरेंस पढ़ने जा रहे हैं ना, ग्रिड का मतलब क्या होता है, ग्रिड का मतलब वो बॉक्स होता है। ये बॉक्स कैसे बना, ये बॉक्स इंटरसेक्शन ऑफ ईस्टिंग्स एंड नॉर्थिंग्स के वजह से बना। ये जो वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस मिल करके जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। व्हाट डू वी कॉल दीज बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर? वी कॉल देम ग्रिड्स, ठीक है। सो वी कैन सी अ लॉट ऑफ ग्रिड्स। जनरली आपके पेपर में 80 to 100 ग्रिड्स कम से कम मिलेगा, जो आपको मैप मिलेगा ना एग्जाम के लिए। सो इन दैट मैप यू विल फाइंड नियरली 80 to 100 ग्रिड्स, ठीक है। अब बात आता है कि व्हाट डू वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है 4 फिगर एंड 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, ठीक है। So we have to find 4 figure and 6 figure grid reference. अब बहुत ध्यान से समझना, we are going to discuss a very important thing and this topic will come for 2 to 4 marks in your exam. Total topo sheet 20 marks का है, ठीक है ना, ये 20 marks का topic है, 20 marks, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है एंड देन नोट से पढ़ लेना है, ठीक है। देखो नोट से ज़रूर पढ़ना है, आप फाकी नहीं मार सकते, मतलब आप यू कैन नॉट आई मीन कैजुअली जस्ट लीव दिस पोर्शन कि हाँ नहीं ठीक है समझ में आ गया, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। नोट्स प्रिपेयर उसी तरीके से किए गए हैं कि आपको फुल 20 मार्क्स मिले, एवरीथिंग हैज़ बिन कवर्ड। सो प्लीज़ पे अटेंशन राइट नाउ एंड आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू रीड फ्रॉम द नोट्स, ठीक है। ओके, नाउ बहुत ध्यान से समझेंगे। अभी तो सिंस वी डोंट नो एनी साइंस एंड सिंबल्स, देर आर मेनी साइंस एंड सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन टोपो शीट। राइट नाउ वी आर नॉट अवेयर ऑफ दो साइंस एंड सिंबल, सो आई एम यूजिंग लेटर्स, ठीक है। आई एम यूजिंग लेटर, जैसे कि ए, अभी मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। अभी हम
आई विल बी आस्किंग यू कि ये ए का 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस बताओ मेरे को, ए का क्या बताओ, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। तो हाउ डू वी फाइंड इट, पे अटेंशन नाउ। 4 फिगर मतलब 4 प्लेसेस रहेंगे, 4 फिगर मतलब 4 स्पेसेस दे विल बी, सो 1 2 3 एंड 4, दे विल बी 4 फिगर्स, ठीक है। अभी ए का एड्रेस देना है, रेफरेंस मतलब एड्रेस, ग्रिड एड्रेस, ग्रिड रेफरेंस मींस ग्रिड एड्रेस। तो हाउ विल वी गिव इट, सी हाफ ऑफ द ग्रिड रेफरेंस मतलब फर्स्ट 2 will belongs to easting, it will belong to easting, half 4 है, 4 में से 2 will belong to easting and next half will belong to northing, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी E पहले आता है, तो we will be writing E first and N बाद में, easting first and northing बाद में। अब देखो ईस्टिंग कौन सा होता है, वर्टिकल लाइंस, अभी हमने पढ़ा था ना वर्टिकल वाले लाइंस ईस्टिंग्स होते हैं बिकॉज दे मूव टुवर्ड्स द ईस्ट। तो अब आप देखिए ए जो है, ए के पास कौन से ईस्टिंग्स है, आप देखो ये वाला एक ईस्टिंग्स है ना, दिस इज एन ईस्टिंग, ये वर्टिकल लाइन है 98, बट ये भी तो है 99, दो ईस्टिंग्स है। सो विच एवर कम्स फर्स्ट, 98 पहले आता है कि 99 पहले आता है, 98 पहले आता है, तो वी विल बी राइटिंग 98, ठीक है, वी विल बी राइटिंग 98। अब टाइम आ गया नॉर्दिंग्स का, तो ए के पास कौन से नॉर्दिंग्स है, एक देखो ए के ऊपर में नॉर्दिंग है और ए के नीचे में भी नॉर्दिंग है, सो ऊपर भी नॉर्दिंग है नीचे भी नॉर्दिंग है, विच वन वी विल टेक, द वन दैट कम्स फर्स्ट। तो 11 एंड 12 पहले कौन आता है, 11 आता है, तो 11 विल बिकम दी नॉर्दिंग। तो 4 फिगर अगर कोई पूछे कि ए का 4 फिगर एड्रेस दो, तो हम क्या बोलेंगे 9811, ठीक है, वी विल से 9811, ठीक है, समझ में आ गया। सिमिलरली एक और कर लेते हैं, लेट्स टेक दिस फॉर एग्जांपल बी, ठीक है, अभी बी का हम लोग 4 फिगर निकालते हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है, पहला 2 ईस्टिंग्स के लिए रहेगा एंड नेक्स्ट 2 विल बी फॉर नॉर्दिंग्स, ठीक है। तो अभी बी का देखो, बी में कौन कौन से नॉर्थ ईस्टिंग्स आ रहे हैं, एक ये 99 वाला लाइन आ रहा है एंड सेकेंड ये 00 वाला लाइन आ रहा है। तो 99 पहले आया है या 00 पहले आया है, 99 पहले आया ना, वी आर गोइंग इन दिस ऑर्डर, 98 99 00 01, तो 99 कम्स फर्स्ट, तो वी विल बी राइटिंग 99, ठीक है, हम लोग 99 लिखेंगे। एंड देन बी के ऊपर एक नॉर्दिंग है और बी के नीचे भी एक नॉर्दिंग है, तो 09 हैज कम फर्स्ट और 10 हैज कम फर्स्ट, 09 हैज कम फर्स्ट, तो हम लोग 09 लिखेंगे, ठीक है, पहले 09 आया बिकॉज नंबर्स आर मूविंग टुवर्ड्स दी नॉर्थ, तो पहले 9 आता है देन 10 आता है, ठीक है। तो इसका ग्रिड एड्रेस क्या हो गया 9909, ये 4 फिगर हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आया है, 4 फिगर, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स 6 फिगर, तो 4 फिगर समझ गए। 4 फिगर बहुत सिंपल है, 4 स्पेस क्रिएट करना है, पहला 2 स्पेस, फर्स्ट 2 स्पेस विल बी फॉर ईस्टिंग्स एंड लास्ट 2 स्पेस विल बी फॉर नॉर्दिंग्स। नाउ विल सी कि हमारे लेफ्ट साइड में भी ईस्टिंग्स होगा एंड राइट साइड में भी ईस्टिंग होगा। वी हैव टू चेक विच नंबर कम्स फर्स्ट, तो विच एवर नंबर कम्स फर्स्ट हम उसको लिख देंगे। देन विल सी नॉर्दिंग, तो हमारे टॉप पे भी नॉर्दिंग रहेगा, हमारे बॉटम पे भी नॉर्दिंग रहेगा, टॉप पे भी नॉर्दिंग बॉटम पे भी नॉर्दिंग, विच वन कम्स फर्स्ट, बॉटम वाला ही पहले आएगा बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टॉप, तो पहले तो बॉटम वाला आएगा, सो विल राइट द बॉटम वाला, ठीक है। अभी नोट से भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब आते हैं 6 फिगर पे, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू 6 फिगर, लेट्स टेक दिस फॉर एग्जांपल ए, अभी इसका 6 फिगर निकालना है, तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 फिगर निकालना है। अगेन हाफ जो होगा दैट विल बी फॉर ईस्टिंग्स एंड हाफ जो होगा दैट विल बी फॉर नॉर्दिंग्स, जस्ट लाइक पहले जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। हाफ पहले 4 निकाल रहे थे तो 2 2 में डिवाइड किया था, अभी 6 निकाल रहे तो 3 3 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एंड फर्स्टली वी विल फाइंड ईस्टिंग्स एंड नॉर्दिंग नॉर्मली, ठीक है। तो ए का कौन सा ईस्टिंग हो जाएगा, आप देखो 99 आ रहा है ना एंड 00 आ रहा है, तो 99 पहले आ रहा है, तो वी विल राइट 99, विल कीप 1 स्पेस ब्लैंक, ठीक है, ये वाला स्पेस को ब्लैंक छोड़ देते हैं। लेट्स गो टू नॉर्दिंग, तो नॉर्दिंग ऊपर में आ रहा है 11, नीचे में आ रहा है 10, तो 10 पहले आया कि 11 पहले आया, 10 पहले आया ना, तो विल राइट 10, ठीक है, एंड एक ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब इस ब्लैंक को कैसे भरना है, अब आप एक चीज समझो, आपके जो बॉक्सेस रहेंगे एग्जाम में, आपके जो ग्रिड्स रहेंगे एग्जाम में, जो ग्रिड्स होने वाले हैं, वो ग्रिड्स का लेंथ एंड ब्रेथ 2 सेंटीमीटर रहेगा, दैट मीन्स इट इज अ स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इट इज ऑलवेज 2 सेंटीमीटर, मतलब ये आप मेजर करोगे ना, व्हेन यू विल मेजर दिस, तो इट विल कम टू 2 सेंटीमीटर, इफ यू मेजर द लेंथ इट विल कम टू 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इट इज अ स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल, 2 2 सेंटीमीटर का है।
what we will be doing, we will be dividing it into 10 parts. हम लोग उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 1 पार्ट विल बी फॉर 2 मिलीमीटर्स, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं, ये हो जाएगा 0, एकदम लाइन से स्टार्ट करेंगे 0, नेक्स्ट वाला जो लाइन होगा वो हो जाएगा 10, ठीक है, और इन बिटवीन हमें 1 to 9 जाना है, ठीक है। तो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस इमेजिन दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अभी देखो मेरा एग्जैक्ट नहीं बनेगा बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग पेन एंड पेपर एंड स्केल, बट आपका एग्जैक्ट आना चाहिए, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। तो मेरा बहुत रफ बना है, आपको प्रॉपर स्केल लेके बनाना है। सेम थिंग वी विल डू विथ नॉर्थिंग ऑल्सो, वी विल डिवाइड इट इनटू 10 पार्ट्स। पहला वाला हो जाएगा 0, लास्ट वाला हो जाएगा 10, इन बिटवीन 1 to 9 आना है, ठीक है। तो विल डिवाइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। मेरा बहुत क्लियरली नहीं बना है बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग स्केल, आई एम नॉट यूजिंग पेपर। आई होप आप समझ सकते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है। वी विल डिवाइड ऑल ऑफ देम इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। देन ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे ए लिखा है, ए की जगह कुछ और भी हो सकता है एग्जाम में, तो व्हाट वी विल डू, वी विल रीच द सेंटर मोस्ट पॉइंट, ठीक है। एक काम करते हैं, कलर चेंज करते हैं, लेट्स टेक ग्रीन, ठीक है। सो ए के बीच में आ जाते हैं, ठीक है, ए के बीच में आ गए, ऑलमोस्ट दिस इज द सेंटर पार्ट, एंड हम लोग ज्वाइन कराएंगे इसको ज्वाइन कराएंगे ईस्टिंग वाले लाइन पे। तो ईस्टिंग वाले लाइन में इट इज कमिंग टू 4, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। एंड देन इसको ज्वाइन कराएंगे नॉर्थिंग वाले लाइन पे भी, तो नॉर्थिंग में भी इट इज ऑल्सो कमिंग टू 4, तो हम लोग 4 लिख देंगे। सो आपको समझ में आया कैसे किए हम लोग? पहले नॉर्मली ईस्टिंग्स भी निकाल लिए, देन वी ऑल्सो फाउंड आउट व्हाट इज द नॉर्थिंग, सो वी कैलकुलेटेड ईस्टिंग्स एंड नॉर्थिंग्स नॉर्मली। वी केप्ट द थर्ड एंड द 6th प्लेस ब्लैंक। थर्ड एंड 6th प्लेस को कैसे भरे? वी डिवाइडेड ईस्टिंग्स इनटू 10 पार्ट्स, वी डिवाइडेड नॉर्थिंग्स आल्सो इनटू 10 पार्ट्स। ईस्टिंग्स को भी 10 पार्ट्स, नॉर्थिंग को भी 10 पार्ट्स। जो स्ट्रक्चर का हमें रेफरेंस फाइंड करना था उसके सेंटर पे जाएंगे, सेंटर से ईस्टिंग्स पे भी ज्वाइन करवाएंगे, नॉर्थिंग पे भी ज्वाइन कराएंगे, ईस्टिंग्स पे भी नॉर्थिंग पे भी। ईस्टिंग पे देखेंगे क्या रीडिंग आ रहा है, तो मेरे इस एग्जांपल में 4 आया तो आई हैव रिटन 4, नॉर्थिंग में भी 4 आया, आई हैव रिटन 4, ठीक है। अगर बीच में आएगा तो विच एवर नंबर कम्स फर्स्ट यू कैन टेक दैट। मान लो 4 और 5 के बीच में गिरता, देन हम लोग 4 ले लेते, ठीक है। थोड़ा बहुत चलता है इधर उधर, उतना कोई हेडेक का बात नहीं है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज ग्रिड रेफरेंस, ठीक है। नाउ जस्ट कंप्लीट नहीं करना है हमें, इसको पढ़ना भी है, तो लेट अस ऑल्सो शो यू। ये ग्रिड रेफरेंस के बारे में लिखा है, एवरीथिंग इज रिटन यहाँ पे, किसका क्या मतलब है, ईस्टिंग्स का क्या मतलब है, नॉर्थिंग का क्या मतलब है, ग्रिड स्क्वायर का क्या मतलब है। देन एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन, यहाँ पे एक डिफरेंट एग्जाम्पल दिया हुआ है बट कॉन्सेप्ट इज सेम। एंड देन नेक्स्ट पेज पे 6 फिगर का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। जो येलो में शेड है, जैसे ये येलो में शेड किया हुआ है, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास वर्कबुक दिया हुआ है। इफ़ यू हैव टेकन क्लास फ्रॉम अस यू वुड हैव गॉट अ वर्कबुक। तो वर्कबुक में देर आर सर्टेन ब्लैंक स्पेस, ठीक है, देर आर सर्टेन ब्लैंक स्पेस। तो ब्लैंक स्पेस पे आपको ये कॉपी करना है जो यहाँ पे येलो में दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज कर लो और कॉपी कर लो। इफ़ यू हैव नॉट अटेंडेड द क्लास येट, या आप लेट से ज्वाइन किए हो, तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करो एंड प्लीज़ कॉपी वट एवर इज़ रिटन ओवर इन येलो कलर, ठीक है। और अगर आप बाहर से मतलब सेपरेटली नोट्स परचेज कर रहे हो अकेडमी से, तन आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। बट अगर आप अकेडमी के मेंबर है, स्टूडेंट है, तो आपको वर्कबुक दिया गया होगा सो दैट आपको थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस भी कराया जा सके, ठीक है। एंड यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है 6 फिगर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो 6 फिगर का फाइंड आउट करने का एग्जाम्पल यहाँ पे मैंशनड है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वी आर मूविंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ कलर्स। तो एक काम करते हैं, थोड़ा टोपो शीट भी देख लेते हैं ना, ये नहीं, यस, लेट अस कम टू दिस। तो आपको एग्जाम में ना ऐसा एक टोपो शीट मिलेगा, दिस इज हाउ योर टोपो शीट विल लुक लाइक। लेट मी जस्ट एक्सपैंड इट, ओके। सो ऐसा टोपो शीट आपको मिलेगा। अब देखो यहाँ पे भी एक सेकंड बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। सो आप देखिए वर्टिकल लाइंस ईस्टिंग्स है बिकॉज दीज लाइंस आर नंबर्ड and they are moving towards the east. This is the eastern direction, basically this is the eastern direction and this is the northern direction, ठीक है।
अपने इधर साइड पे वेस्ट होता है एंड नीचे साइड में साउथ होता है। तो आप देखो नंबर्स किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट, इट इज़ ऑलवेज शोन इन रेड कलर, ठीक है। उसके बाद नीचे में फिर आप देखो यहाँ पे नॉर्दिंग्स भी दिख ही रहा है आपको, 88, 89, 90, 91, 92, सो नॉर्दिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। ओके अब आप देखो आपका जो टोपो शीट है, इस टोपो शीट में आपको बहुत सारे कलर्स दिख रहे होंगे, यू कैन सी येलो कलर, यू कैन सी रेड कलर, यू कैन सी ग्रीन कलर, यू कैन सी वाइट पैचेस हियर एंड देयर। तो इनका क्या मीनिंग है, आपको ब्लैक भी दिख रहा है, ठीक है। आप देखो यहाँ देयर आर सो मेनी लाइंस दैट आर शोन इन ब्लैक कलर, सी देयर आर सो मेनी लाइंस जो यहाँ पे ब्लैक कलर में दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये सब क्या है, व्हाट आर दीज लाइंस, ठीक है, व्हाट आर ब्लैक कलर यूज फॉर। आप पूरा मैप देखोगे तो येलो शेड में है, ग्रीन शेड में है, वाइट पैचेस है, रेड स्पॉट्स है और रेड लाइंस है, ब्लू कलर है, ठीक है। इफ़ यू फोकस ओवर दिस पार्ट देन यू विल सी सम अमाउंट ऑफ ब्लू कलर। तो व्हाट आर ऑल दीज, तो आओ अभी वही देखने जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग वही स्टडी करेंगे, ठीक है। नोट से पढ़े क्या, सीधा नोट से ही पढ़ते हैं ना। In between I'm leaving certain topics because I'll do that in the second video, ठीक है। अभी फर्स्ट वीडियो में ये रहा कलर्स, तो दिस इज़ पेज नंबर 12 ऑन माई नोट्स, ठीक है। पेज नंबर 12 में अब देखो सबसे पहली बात अगेन जो येलो में शेड है ना, दैट इज़ फॉर माई स्टूडेंट्स हु हैव द वर्कबुक, यू हैव टू कॉपी इट राइट नाउ, ठीक है। पॉज करके कॉपी कर लेना, बट पहले मेरे बात सुन लो। ब्लू कलर, आप समझो ब्लू कलर किस लिए यूज होता है। ब्लू कलर इज यूज ऑलवेज टू शो वाटर बॉडीज, वो रिवर भी हो सकता है, वो टैंक भी हो सकता है, वो वेल भी हो सकता है। ब्लू कलर इज ओनली यूज टू शो वाटर बॉडीज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम के लिए ब्लू कलर का इंपॉर्टेंस आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 ग्रीन कलर, ग्रीन कलर इज़ यूज टू शो फॉरेस्ट एरिया, अगेन फॉरेस्ट एरिया इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ जहाँ आपको ग्रीन पैचेस दिखेंगे, ग्रीन शेड दिखेगा, दैट एंटायर थिंग इज फॉरेस्ट। नेक्स्ट येलो, येलो होता है एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, तो मोस्ट ऑफ द एरियाज आपको येलो में ही दिखेंगे, वो एग्रीकल्चरल लैंड होता है। नेक्स्ट आता है वाइट कलर, वाइट कलर होता है वो लैंड विच इज़ नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर, सूखा ज़मीन दिखाने के लिए हम लोग वाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। बैरन लैंड या फिर ड्राई रिवर, वो सब दिखाने के लिए वाइट यूज़ किया जाता है। देन ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का मल्टीपल यूजेस है, ठीक है। रिवर दिखाने के लिए भी यूज़ होता है, छोटा छोटा जो रिवर के लाइंस होते हैं, ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, वो सब दिखाने के लिए यूज़ होता है। ब्लैक का बहुत सारा काम होता है, ठीक है। ब्लैक इज़ नॉट यूज फॉर जस्ट वन पर्पस, इट इज़ रिटन ओवर हियर। टेलीफोन लाइंस के लिए हो सकता है, टेलीग्राफ लाइंस के लिए हो सकता है, हाइट्स के लिए हो सकता है, हाइट्स विल बी डूइंग इन द सेकेंड क्लास। प्लेस का नाम लिखने के लिए ब्लैक कलर यूज़ हो सकता है। तो ब्लैक कलर का बहुत सारा काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू ब्राउन, ब्राउन में कॉन्टोर लाइंस दिखाते हैं, कॉन्टोर लाइंस वी विल बी डिस्कसिंग इन द सेकंड क्लास ओनली, ठीक है। सेकंड क्लास में जब हाइट्स की बात करेंगे तो कॉन्टोर लाइंस की भी बात करेंगे। तो ब्राउन जो कलर होता है वो कॉन्टोर लाइंस के लिए होता है। एंड रेड रोड्स के लिए दिखाया जा सकता है, फिर आपके सेटलमेंट्स के लिए दिखाया जा सकता है, ईस्टिंग्स एंड नॉर्दिंग्स के लिए दिखाया जा सकता है। सो अभी तक हमने जितने भी कलर्स देखे एक बार ट्राई करते हैं उसको रिवाइज करने का। ब्लू कलर वाटर बॉडीज, ग्रीन कलर फॉरेस्ट, येलो कलर एग्रीकल्चरल लैंड, व्हाइट कलर नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर, ब्लैक अ लॉट ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ द प्लेसेस, हाइट्स एटसेट्रा, लॉट ऑफ थिंग्स। ब्राउन कलर कॉन्टोर लाइन, सैंडी फीचर्स, एंड रेड कलर सेटलमेंट्स, रोड्स, ईस्टिंग्स, नॉर्दिंग्स सब रेड में दिखाते हैं, ठीक है। सो ये रहा इंपॉर्टेंस ऑफ कलर, इट इज़ एटलीस्ट अ 2 मार्क्स टॉपिक, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए ये आ जाता है। अब हम आपको यहाँ पे मैप पे दिखा भी देते हैं। सो आपको अगर स्क्रीन पे प्रॉपरली नज़र आ रहा हो देन आप देख सकेंगे कि लेट मी यूज़ ब्लू ओनली, तो आप देख सकोगे कि यहाँ पे एक ब्लू लाइन जा रहा है, ठीक है। आई डोंट नो स्क्रीन पे कितना क्लियरली दिखेगा, बट यहाँ से ना ब्लू लाइंस जा रहे हैं, ठीक है। आई एम ऑल्सो शोइंग इट इन ब्लू, बट मेरे ब्लू लाइन के पहले भी यहाँ पे ब्लू ही लाइन था, ठीक है। सो ब्लू लाइंस दिखाया जाता है जनरली रिवर्स के लिए। उसके बाद देखो फोकस ऑन दिस एरिया, तो यहाँ पे एक सेकेंड फोकस ऑन दिस एरिया, तो यहाँ पे आपको ग्रीन पैच थोड़ा सा नज़र आ रहा है। व्हाट इज़ दिस ग्रीन पैच, इट इज़ फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद नीचे में भी थोड़ा सा ग्रीन होगा आई गेस, यहाँ पे भी थोड़ा सा ग्रीन है, तो दिस इज़ फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये एंटायर एरिया आपको येलो में दिख रहा है, तो दिस इज़ एग्रीकल्चरल एरिया। फिर यहाँ पे अ लॉट ऑफ एरिया यू कैन सी इन वाइट, ठीक है।
आप देखो यहाँ पे वाइट पैचेस है, ये इतना बड़ा एरिया फुल वाइट पैचेस है, दीज आर बैरन लैंड। बैरन लैंड मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। देन इफ यू लुक एट दीज एरियाज, फोकस ऑन दीज एरियाज, सो यहाँ पे आपको कॉन्टोर लाइंस दिख रहे हैं। कॉन्टोर लाइंस में डिटेल में नहीं जा रहे बिकॉज डिटेल सेकंड चैप्टर में करना है, सेकंड क्लास में करना है, ठीक है। ब्लैक, सी ऑल दीज लाइंस, ऑल आर इन ब्लैक, ठीक है। सी ऑल दिस लाइंस, दीज आर ऑल इन ब्लैक। एंड रेड देख लो, ये ईस्टिंग्स, नॉर्दिंग्स, ये सब रेड में दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे रेड स्पॉट्स नज़र आएगा, यहाँ पे आपको रेड स्पॉट्स नज़र आएगा, यहाँ पे रेड स्पॉट्स। तो ये सब जो रेड स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं ये सब सेटलमेंट्स है। विल डू देम इन डिटेल, हम लोग करेंगे सेटलमेंट्स को डिटेल में समझेंगे, बट राइट नाउ आई एम शोइंग यू कि ये सब कलर एक्चुअली में है, मतलब बस ऐसे ही नोट्स के लिए नहीं है, मतलब एक्चुअल में भी होते हैं, ठीक है। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड ग्रिड्स, वी हैव डिस्कस्ड कलर्स। नाउ लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। 8 इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस, 8 इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस। तो देख लो भाई, ऐसा कुछ 8 डायरेक्शन होता है, ठीक है। टॉप पे होता है नॉर्थ और एकदम बॉटम पे होता है साउथ, ठीक है। आपके राइट हैंड साइड में, आपका जो राइट हैंड है उसको ईस्ट बोल लेना, ठीक है। आपका जो राइट हैंड है उसको ईस्ट बोल लेना और आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको वेस्ट बोल लेना, ठीक है। जैसे गुजरात, राजस्थान, ये सब इंडिया के वेस्टर्न पार्ट्स में है, तो आप वैसे याद कर लेना। आपका अगर राइट हैंड है तो दैट राइट हैंड इज ईस्ट, आपका लेफ्ट हैंड इज वेस्ट, टॉप पे होता है नॉर्थ एंड बॉटम पे होता है साउथ। ये तो हो गया 4 मेन डायरेक्शंस, ठीक है। ये हो गया 4 मेन डायरेक्शन। इसके अलावा अदर डायरेक्शंस भी है, लेट अस सी दैट। अदर डायरेक्शंस को भी देख लेते हैं। सो आप देखो, ये रहा अदर डायरेक्शन, ये एक अदर डायरेक्शन है। इसको क्या बोलेंगे? दिस विल बी नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। दिस विल बी कॉल्ड साउथ ईस्ट, बिकॉज ये साउथ एंड ईस्ट के बीच में है। दिस विल बी कॉल्ड साउथ वेस्ट, बिकॉज दिस इज बिटवीन साउथ एंड वेस्ट। And this will be called northwest because this is between north and west. Now what is directions all about? What is it important? Why is it important? क्यों ज़रूरी है डायरेक्शन पढ़ना? Because देखो, आपको क्या करेंगे ना, वो लोग 2 विलेज का नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज विलेज ए एंड दिस इज विलेज बी, और आपको बोलेंगे कि आप डायरेक्शन बताओ ऑफ विलेज बी फ्रॉम विलेज ए। वर्ड्स पे फोकस करना। डायरेक्शन बताना है ऑफ विलेज बी फ्रॉम विलेज ए। तो विलेज ए पे खड़े होके हमें कौन डायरेक्शन में जाना होगा? हमें ऐसे डायरेक्शन में जाना होगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? लुक एट द डायरेक्शंस दैट आई हैव जस्ट टॉट यू। साउथ वेस्ट हो गया, सॉरी साउथ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। दिस इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो ऐसे हम लोग बोल देंगे कि विलेज बी इज इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम विलेज ए। तो आपको ना इस तरीके से क्वेश्चन देंगे, वो आपको 2 विलेज का नाम बोल देंगे और बोलेंगे कि बताओ कि ये विलेज बी जो है वो ए के कंपैरिजन में किस डायरेक्शन में है। मान लो क्वेश्चन रिवर्स हो जाए, ठीक है। सो हेयर इज ए एंड हेयर इज बी, और वो पूछे कि ए का डायरेक्शन बताओ, तो ए किस डायरेक्शन में है? ए विल बी इन दिस डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। ए इज इन दी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो हमें ध्यान से समझना होगा कि बोला क्या है। बात समझ में आया? ओके। तो डायरेक्शन का ये इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा रिवर का भी डायरेक्शन पूछते हैं कि बताओ रिवर कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो दैट आई एम नॉट गोइंग राइट नाउ, हम लोग उसको थोड़ा लेटर क्लास में करेंगे, बिकॉज आई नीड टू टीच यू हाइट फर्स्ट। अगर रिवर में एरो दिख गया, रिवर में ना कभी कभी एरो बना हुआ रहता है टोपो शीट में, दे समटाइम मेक एरो, तो एरो दिख गया तब तो एरो वाला डायरेक्शन हम लोग बोल देंगे। बट अगर एरो नहीं होता है देन क्या करेंगे? तो देन हाइट का चैप्टर पढ़ेंगे पहले, फिर बताते क्या करेंगे। आज के सेशन का लास्ट चैप्टर ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न मतलब रिवर पैटर्न भी बोल सकते हो। नाउ ध्यान से देखो, ब्लैक कलर में दिखाया जाता है। आई एम नॉट शोइंग इट इन ब्लैक कलर राइट नाउ, बट कभी कभी आपको ड्रेनेज पैटर्न ऐसा दिखेगा। एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में रिवर निकल रहा है, ठीक है, उसके जो ब्रांचेस है, इन एनी डायरेक्शन दे आर कमिंग आउट। तो ऐसा जब रहता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। क्या बोलते हैं? डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न।
अगर रिवर पैटर्न 90 डिग्रीज में घूम रहा है, ठीक है ना, एग्जैक्ट 90 नहीं होगा, ठीक है, कंपास लेके मत बैठिएगा, प्रोट्रैक्टर लेके मत बैठिएगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होगा, बट इट विल कम इन ऑलमोस्ट 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे 90 डिग्री पे घूम रहा है। तो अगर ऐसे ब्लॉक या रेक्टेंगुलर वे में घूम रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। पहले वाले को क्या बोलते थे, डेंड्रिटिक, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रेलिस। पहले वाले को डेंड्रिटिक, दूसरे वाले को ट्रेलिस। पहले वाले का एक और नाम है ट्री लाइक ड्रेनेज पैटर्न, दूसरे वाले का भी एक और नाम है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। ओके, अब देखो नेक्स्ट वाला क्या रहेगा, नेक्स्ट वाला ड्रेनेज पैटर्न में क्या होगा ना, बीच में एक हाई लैंड रहेगा, हाई लैंड मतलब थोड़ा हाइट रहेगा, एक हाइट रहेगा, एंड फ्रॉम द हाइट इन ऑल डायरेक्शंस रिवर विल बी फ्लोइंग, फ्रॉम द हाइट इन ऑल डायरेक्शंस रिवर विल बी फ्लोइंग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको वी विल कॉल रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। क्या बोलेंगे, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। सो डेंड्रिटिक, ट्रेलिस, रेडियल, लास्ट। विल सी अ रिवर फ्लो कर रहा है एंड फ्लो करते करते ना बीच में गायब, एंड देन अगेन वापस रीअपियर हो जाएगा। सो ये जो बीच में गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, तो ऐसे ड्रेनेज पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसअपियरिंग ड्रेनेज पैटर्न। वी विल कॉल देम डिसअपियरिंग ड्रेनेज पैटर्न। बात समझ में आया। सो 4 टाइप के ड्रेनेज पैटर्न है। आइए इसको नोट से भी एक बार पढ़ लेते हैं। आई हैव टू सी कि ये कहाँ पे है। ये डायरेक्शन का है, तो डायरेक्शन का एक बार पढ़ लेना। दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 17 एंड ये रहा ड्रेनेज पैटर्न। तो ऑल 4 ड्रेनेज पैटर्न आर गिवन ओवर हियर एंड एवरीथिंग इज गिवन इन योर नोट्स। तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। एग्जाम में अगर डेफिनेशन आया तो डेफिनेशन यही लिखना है जो इसमें लिखा हुआ है। whatever is written over here, that this is what you have to write, and अगर definition नहीं आता तो they will give you to identify the drainage pattern. We will do some practice question, don't worry, we will do some practice question. तो आपको एक ग्रिड रेफरेंस दे देंगे और बोलेंगे कि उस ग्रिड रेफरेंस में जो भी ड्रेनेज पैटर्न आपको दिख रहा है आइडेंटिफाई करो, तो आपको जाके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल इन द फर्स्ट वीडियो, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे चैप्टर, सेम चैप्टर सेकंड क्लास के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।